भारत के प्रधानमंत्री हाल में अमेरिका की यात्रा पर थे। जो साझा वक्तव्य या घोषणाएं हैं वो सार्वजनिक रूप में आ चुकी हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा में जाने से पहले हमने प्रधानमंत्री से ये कहा था, आग्रह किया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से पुख्ता आश्वासन लेकर आए H-1B वीज़ाज़ के लिए। कोई भी ऐसा कंसेशन ना दें जिससे देश के हित को चोट पहुंचती हो। दुर्भाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति से भारत के जो प्रोफेशनल्स हैं, IT प्रोफेशनल्स, उनके हित की रक्षा के लिए मजबूती से बात नहीं रखी और खाली हाथ लौट कर आए हैं बिना किसी आश्वासन के। दूसरा दुर्भाग्य की बात है कि अमेरिका को केवल खुश करने के लिए कई ऐसे आपने कंसेशंस दिए हैं, आश्वासन दिए हैं जो आने वाले वक्त में हमारे देश की स्वास्थ्य सुरक्षा को खतरा पहुंचाएगा। ख़ास तौर पे जो वो दवाएं जो जीवन प्रदान करती, जीवन की रक्षा करती हैं, चाहे वो स्ट्रोक के लिए इस्तेमाल होती हो, डायबिटीज़ के लिए, कैंसर के लिए, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ बनाती हैं, उनको जो हमारी प्राइस लिस्टिंग की सूची से बाहर करने की प्रस्तावना है। हम इस सरकार को चेताना चाहते हैं कि ऐसी कोई भी निर्णय या कदम भारत को स्वीकार्य नहीं होगा। Before the Prime Minister had left for his state visit to the United States of America, we had urged him that he must protect the interests of the Indian professionals who go on H-1B1 visas to the United States of America. Because they cannot be equated with immigrants, they are skilled professionals and they do bring great value to their jobs. Prime Minister has returned without bringing in any credible assurances from the US President Trump. There has been no mention of H-1B visas and Prime Minister is silent. He owes an explanation to our young people and to our professionals as to why he has failed to achieve what was expected of India's Prime Minister. There are also reports of concessions and offers of concessions which will undermine India's health security and national interests, particularly with regard to life-saving medicines on cancer, stroke, diabetes and heart. That many of these medicines which are there in the price control and in the list or drug price control, there is pressure from the American pharmaceutical lobby to take more than 100 drugs off the essential medicines price list. We want to caution the government that this will not be acceptable. The government must come out with a categorical assurance that they will not surrender to this pressure of these pharmaceutical multinationals and protect the health security of the Indian citizens. We are equally concerned with the recent developments on India's frontiers, on the borders with our western neighbor Pakistan, which has been marked by a number of serious incidents. At the same time, with the northern neighbor also, there are disturbing signals. While India stands firm when it comes to safeguarding its sovereignty and territorial integrity, its national interests, it is important that the Prime Minister takes the senior leadership of the opposition into confidence as to what is the security scenario and how the government seeks to address the situation. It is important for both China and India to adhere to the guiding principles to resolve all matters as agreed between the two Prime Ministers
in the year 2005. We must, as a country, ensure that there is no deviation and those principles are adhered to in letter and spirit, so that the country is assured that there is no major worry or possibility of any escalation. सीमाओं पे सुरक्षा के विषय में चिंता है। काफ़ी समय से जो हमारे पाकिस्तान की सीमा पर घटनाएं हो रही हैं, सीमा पार से आतंकवाद के प्रहार हो रहा है भारत के सैन्य ठिकानों पर, और वो निरंतर बढ़ रहा है। उसके लिए पुख्ता कदम सरकार को उठाने चाहिए ताकि हमारी सेना के अफसर और जवान जो बहादुरी से सीमाओं की रक्षा करते हैं वो सुरक्षित रहें, और एक ऐसी स्थिति बने जहाँ सीमा पर जो गाँव में हमारे किसान रहते हैं वो भी अपना जीवन यापन और कृषि कर सकें। हमारी उत्तरी सीमा पर भी हाल के दिनों में कुछ घटनाएं हुई हैं जो चिंताजनक हैं। भारत अपने हित की, अपनी सुरक्षा की, अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है, पर यह आवश्यक हो जाता है कि प्रधानमंत्री विपक्ष के नेतृत्व को विश्वास में लें कि हमारी सीमाओं पर स्थिति कैसी है, सरकार का उसका क्या आकलन है और उसको किस तरह से निपटने की सरकार की सोच है। क्योंकि राष्ट्रीय विषय है, ये केवल सरकार तक सीमित नहीं रह जाता। भारत और चीन के बीच में 2005 के अंदर एक समझौता हुआ है जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, जो दिशा देते हैं, सिद्धांत कि किसी भी ऐसी स्थिति को और सीमा पर हम किस तरह से शांति बनाए रखें, उसको हम दोनों देशों ने उस पर हस्ताक्षर किए हैं, वो भी प्रधानमंत्री के स्तर पे। तो 2005 का जो करार है, जो हमारा समझौता है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हर कोशिश रहनी चाहिए कि दोनों देशों के बीच में हर विषय, हर विवाद 2005 के जो शर्तें हैं और 2005 में तय जो प्रिंसिपल्स हैं, जो दिशा है, उसी पर रहे। इसीलिए ये ज़रूरी है कि सरकार विपक्ष को इसमें विश्वास में रखे। ये कोई इतनी हल्की बात नहीं है कि सरकार आग्रह करे और कुछ घंटे पहले एक मुख्य राष्ट्रीय दल का या विपक्षी दलों की इसमें सोच बदल जाए। सरकार ने जो किया है आयोजन एक बहुत बड़े जश्न का, उसका कोई औचित्य नहीं है। संसद की मर्यादा और देश की परंपराओं को मद्देनज़र रखते हुए हम उसका अनुमोदन नहीं कर सकते, हम उसमें शामिल नहीं हो सकते। गंभीरता का विषय है। जहाँ तक देश में आर्थिक उदारीकरण हुआ, देश में बड़ी बड़ी योजनाएं आई, बड़ी नीतियां आई, पर भारत ने कभी भी उसके लिए मध्य रात्रि संसद का सत्र बुलाकर केंद्रीय कक्ष में जश्न नहीं मनाया। हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि 1971 में भारत ने एक बड़ी जीत हासिल करी थी, बांग्लादेश आज़ाद हुआ, पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण किया था। उस समय भी स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने संसद के केंद्रीय कक्ष की मर्यादा को भंग नहीं किया था वहाँ पे मध्य रात्रि में कोई जश्न मनाने का। 1974 में भारत परमाणु शक्ति बना था, कोई संसद के केंद्रीय कक्ष में इंदिरा जी ने ऐसा सत्र नहीं बुलाया। 1975 में आर्यभट्ट अंतरिक्ष में गया, भारत अंतरिक्ष शक्ति स्वीकार हुआ, तब भी हमने कुछ ऐसा नहीं किया। 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, बड़ा उदारीकरण हुआ, डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, कोई जश्न उत्सव नहीं हुआ। उसके बाद यूपीए की सरकार ने 4 बड़े अधिकार दिए देश की जनता को। सूचना का अधिकार दिया, रोज़गार का अधिकार दिया 100 दिन का मनरेगा के कानून से, शिक्षा का अधिकार दिया,
खाद्य सुरक्षा का अधिकार दिया, पर कभी भी ये उचित नहीं समझा गया कि केंद्रीय कक्ष के अंदर सेंट्रल हॉल में कोई उत्सव मनाया जाए। ये केवल एक टैक्स लग रहा है, वो भी गुड्स टैक्स और सर्विस टैक्स को इकट्ठा मिश्रण, जो सेल्स टैक्स और वैट हो गया था 2005 से। इसलिए कोई ऐसा बड़ा बात नहीं है जिस पे संसद के केंद्रीय कक्ष में ये उत्सव मने। ये केवल प्रचार का तंत्र संसद को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हमने पहले भी कहा कि 3 ही अवसरों पर ये हुआ है। हमने सरकार को कल भी ये कहा, 1947, 72 जो 25वीं सालगिरह थी, जयंती थी हमारे भारत की आज़ादी की, और 1997 में जब स्वर्ण जयंती मनाई गई थी। इसलिए उस परंपरा को मत तोड़ें, ये हम सरकार को आज भी ये समझाना चाहते हैं। जहाँ तक जीएसटी का प्रश्न है वो अलग बात है, हम उसके विरोध में नहीं। एक अलग प्रश्न उठता है कि क्या राज्य पूरी तरह से तैयार हैं, क्या केंद्र सरकार ने छोटा उद्योग और छोटा जो कारोबार है उसको ट्रेनिंग दी है, उसको प्रशिक्षण दिया है, क्या जीएसटी नेटवर्क का ट्रायल रन हुआ है। कई राज्यों ने मांग की है। ये समझना देश को ज़रूरी है कि 300 करोड़ रिटर्न फाइल होंगी 1 महीने के अंदर, साल में 3600 करोड़ रिटर्न्स जीएसटी की फाइल होंगी। हर व्यवसाय को, हर व्यापार को, चाहे छोटा है या बड़ा, 1 महीने में 3 रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेंगी, सालाना 36 और एनुअल रिटर्न जो साल की रिटर्न वो 37 रिटर्न्स। इसलिए तैयारी मजबूत होनी चाहिए, ये आवश्यक है। अगर राज्यों ने ये कहा है तो सरकार को कोई नुकसान नहीं होता कि छोटे उद्योग को, उसकी मांग को देखते हुए, छोटे व्यवसाय के व्यापार की मांग को देखते हुए, राज्यों की बात को सुनते हुए 2 महीने का ट्रायल रन करते हैं। हैरानी की बात यह है कि जो रिटर्न फाइल करने का फॉर्म है वो अभी पिछले कल 29 जून को आया है, अभी तक देश में नहीं गया, अभी पहला फॉर्म ही कल ही आया है। तो आने वाले दिनों में तकलीफ होगी, और अभी ये एक बड़ा कदम है जिसका हमने समर्थन किया। जीएसटी एक हकीकत बन रही है और आने वाले वर्षों में हम कहेंगे कि ये इसका स्वरूप सुधरेगा, क्योंकि अभी हम इसको एक टैक्स नहीं कह सकते, क्योंकि अभी सेंट्रल जीएसटी है, स्टेट जीएसटी है, अभी अलग अलग कीमत होगी आपकी, चाहे वो पेट्रोल की है, डीजल की है, हर राज्य की अपनी कीमत होगी, कहीं कम कहीं ज़्यादा। बिजली और रियल एस्टेट, अल्कोहल जो इससे बाहर रखा गया, उसके बावजूद भारत की जीएसटी दुनिया में सबसे ऊपर होगी, इसका जो दर है, और उसके 5 स्लैब्स हैं इफ़ेक्टिवली। सरकार 4 कहे पर 5 बनते हैं, तो कोई नुकसान नहीं है कि 2 महीने इसमें जीएसटी नेटवर्क का ट्रायल रन करें, प्रशिक्षण दें। 1 सितंबर की डेडलाइन है, 1 सितंबर तक ये लागू कर देते हैं। पर हम एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं, हमने पहले भी कहा है, दोहरा रहे हैं कि हम जीएसटी के पक्षधर थे, हम ही लाए थे, हम आज भी पक्ष में हैं, हम पूर्ण समर्थन करते हैं। पर अपना कर्तव्य मानते हुए सरकार को चेताते भी हैं कि इसमें यहाँ ये आशंकाएं हैं, उसकी तरफ सरकार गौर करे और इसमें राजनीतिक विरोध की बात को मत लाएं। अगर कोई राज्य बात कर रहे हैं, दूसरे विपक्षी दल बात कर रहे हैं, हमारी बात को सम्मान से सुने। अगर हमारा विरोध होता तो संविधान संशोधन ही नहीं होता, ना ही ये कानून बनते। इसलिए ये बात आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहते हैं। सरकार का आग्रह करना, हमने तो सरकार के आग्रह को स्वीकार किया था संविधान संशोधन के पक्ष में मत डालकर। संसद ने तो अपना काम ख़त्म कर दिया, अब क्यों बुला रहे हैं? हमने तो संविधान संशोधन पास किया 3 अगस्त 2016 को, और उसके बाद जीएसटी के 3 कानून हमने पारित कर दिए। अब उत्सव हो और परंपराएं तोड़ी जाए, उसके हम भागीदार नहीं हो सकते, उसमें हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। देखिए, जीएसटी एक महत्वपूर्ण शुरुआत है। मैंने कहा ये पूरक नहीं अपने आप में, जो कल से लागू होगा
क्योंकि 45% के लगभग हमारा रेवेन्यू बेस उसके बाहर है एक्सक्लूजन लिस्ट पे, जिसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, बिजली है, रियल एस्टेट है और अल्कोहल है। तो जब एक रेवेन्यू न्यूट्रल टैक्स है जिसमें हर राज्य को कोई भी क्षति होगी उसकी भरपाई होगी, तो इसमें सबको शामिल करना चाहिए था। तो ये कोई उसको हम गंभीरता से लेते हैं, हम ही इसको लाए थे। हाँ, ये एक उत्सव और प्रचार का विषय नहीं है। एक टैक्स ही तो आ रहा है, वो भी अभी पूरी तरह से पका नहीं है, समय लगेगा। टैक्स पे उत्सव मनाना, जश्न मनाना उचित नहीं है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं, और वो भी परंपराओं को तोड़ के। हर राजनीतिक दल को अपना दृष्टिकोण है, अपना निर्णय लेना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना निर्णय लिया है और वो निर्णय देश के इतिहास को, संसद की मर्यादा को और आज़ाद हिंदुस्तान की परंपराओं को मद्देनज़र रखते हुए किया है। हमने किसी दूसरे दल से ये आग्रह नहीं किया कि उनका निर्णय क्या हो। बाकी विपक्षी दलों ने अपना निर्णय लिया है, तृणमूल कांग्रेस ने निर्णय लिया है, डीएमके ने लिया है, वामपंथी दलों ने दिया है, तो बहुत दलों ने अपना निर्णय लिया है। तो ये विवाद का विषय नहीं है। ये कोई ऐसा शर्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसी के सामने नहीं रखी, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई हम लोगों ने करी थी, हमारे संगठन ने करी थी, और उसी सोच से बाकी जो राजनीतिक दल जुड़े हैं वो इसके पक्ष में नहीं हैं कि परंपरा तोड़ी जाए और एक टैक्स जो लग रहा है उसको उसी ऊंचाई पर पहुंचा दिया जाए जो भारत की आज़ादी के 25 बरस और 50 बरस का जो उत्सव मनाया गया था।